In the name of Allah, who is the kind and gracious. Assalamu alaikum students. I'm Afshin Shubi. Today I'm going to teach you poem The Rebel. The Rebel, it is written by D.J. Enright. The full name of the writer is Dennis Joseph Enright, who was a British academic poet, novelist. He has written a wide range of essays, reviews, anthologies, children's books and poems. He was born in 1920. So far as his profession is concerned, he was a poet, novelist. Works which were written by him: Robert Graves and the Decline of Modernism, Memoirs of Mendicant, and he died in 2002. Okay, the books he has written: The Oxford Book of Death, Interplay, and Entry Time, a memoir. Theme of the poem: The Rebel. The Rebel is a lightly expressed poem written in a casual style, free of any bitterness or criticism. The poet shows the character of rebel, one who doesn't conform to the norms of society and has a contradictory attitude based on self-assertion. Here, self-assertion means confident and forceful expression of oneself. I one's views about oneself. Okay, and here conform mean behaves a person who behaves socially accepted rules, according to the socially accepted rules. Okay, तो रेबल जो है ये एक हल्के फुल्के अंदाज में राइटर जो है बता रहा है। कोई इसमें तलखी नहीं है, कोई तनकीद नहीं की जा रही, बस एक उसने माशरे में एक चीज़ को देखा, पॉइंट आउट किया और इसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे राइटर हमें जो है एक रेबल के बारे में बताता है, बागी के बारे में, एक ऐसा पर्सन जो कि सोशली एक्सेप्टेड रूल्स जो हैं, जो माशरे के बने हुए रस्म व रिवाज हैं, उनको फॉलो नहीं करता बल्कि डिफरेंट वे अपनाता है। Who is a rebel? You can see the pic here. I'll zoom it, okay, in such a way. The people who are different, not only by look but also by their actions. Okay. Who am I? Okay, rebel की exact definition क्या है? A person who rises in a position or armed resistance against an established government, leader or any authority. एक ऐसा person जो कि गवर्नमेंट के अथॉरिटी के या फिर किसी लीडर के बनाए हुए जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करता, उनके अगेंस्ट जाता है। अ नॉन कन्फॉर्मिस्ट मीन सोशली एक्सेप्टेड रूल्स को फॉलो नहीं करता। Okay, what are the qualities of rebels? One who doesn't follow any rules, one who hates authoritative figures, one who loves to follow a different path. रेबल बागी वो होता है जो कि रूल्स को फॉलो नहीं करता, जिसको अथॉरिटेटिव फिगर जो है हाकमाना अंदाज जो है या हाकमाना लोग जो हैं वो पसंद नहीं, उनसे वो नफरत करता है। या और रेबल वो होता है जो कि डिफरेंट तरीके से काम करना पसंद होता है उसे। Okay, this is not typically a political rebel who wants a revolution in the country, but this is a common teenager boy who, for his inexperience, exhibits himself so as to draw attention. लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जो है ना, ये कोई पॉलिटिकल रेबल नहीं है जो कि माशरे में इनकलाब लेके आता है, या फिर माशरे में जो जुल्म सितम हो रहा है, या फिर कोई गलत जो है गवर्नमेंट डिसीजंस ले रही है, या कोई भी अथॉरिटेटिव फिगर जो है वो रॉन्ग कर रही है तो उसके अगेंस्ट जाता है और माशरे में अपने लिए भी बेहतर करता है, दूसरों के लिए भी। नहीं, यहाँ पे उसकी बात नहीं है। यहाँ पे एक टीनेजर बॉय की बात है जो कि अपने इतना तजर्बा ना होने की वजह से जो है दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए डिफरेंट वेज अपनाता है। Okay, now we will see the text of this poem. Listen carefully and after that I'll explain the text. Okay, here now we can see how the rebel is different from others. Okay, the very first point is that when everybody has short hair, जब हर कोई छोटे बाल रखता है, the rebel lets his hair grow long, तो rebel लंबे बाल रखता है। When everybody talks during the lesson, जब हर कोई लेसन के दरमियान डिस्कशन करता है, बात करता है, the rebel doesn't say a word. rebel बिल्कुल खामोश रहता है। Okay, when nobody talks during the lesson, जब कोई भी लेसन के दौरान बात नहीं करता, the rebel creates a disturbance. rebel जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। When everybody wears a uniform, जब सारे यूनिफॉर्म पहनते हैं,
द रेबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लॉथ, तो वो अजीबोगरीब से फैंटास्टिक क्लॉथ्स पहनता है रेबल जो है, जस्ट टू शो हिमसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। व्हेन एवरीबॉडी इज प्रेसिंग द सन, जब सब चाह रहे होते हैं कि धूप निकले। द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन, तो रेबल कहता है कि बारिश होनी चाहिए। व्हेन एवरीबॉडी गोज टू द मीटिंग, जब हर कोई काम के लिए जाता है, मीटिंग के लिए जाता है, द रेबल स्टेज एट होम एंड रीड्स द बुक, रेबल घर में रहता है और किताब रीड करता है, जस्ट टू शो हिमसेल्फ डिफरेंट। व्हेन एवरीबॉडी सेज यस प्लीज, जब हर कोई कहता है कि जी ज़रूर, देन द रेबल सेज नो थैंक यू, तो रेबल कहता है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी गुड टू वी हैव रेबल्स, अच्छी बात है कि हम रेबल्स हमारी सोसाइटी में। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी आवर्स एज यूअर्स, लेकिन खुद रेबल बनना कोई भी पसंद नहीं करता। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, तो रेबल बनना कोई भी पसंद नहीं करता। नाउ वी विल सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइन्स हियर। Actually, here the poem The Rebel is written by British poet D.J. Enright. In full, Dennis Joseph Enright. The poem is on the rebel. Rebel is a person who always disagrees with you, or your friends are always does the opposite of what everyone is doing. He likes to look different from others. जी पहले भी हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि डेनिस जोसेफ इनराइट ने लिखा है, तो रेबल ऐसा इंसान है जो डिसएग्री करेगा हर बात में, हर मामले में, आपके अपने फ्रेंड से या फिर हर तरीके से जो है वो डिफरेंट चलेगा। ओके, नाउ वी विल सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइन्स। व्हेन एवरीबॉडी हैज़ शॉर्ट हेयर, जब हर कोई छोटे बाल रखता है, द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, तो रेबल जो है वो अपने बालों को लंबा होने देता है। In these lines, the poet tells that when everybody keeps short and uniform hair, the rebel likes to grow his hair long. He does like this to look different than others. तो rebel सिर्फ लंबे बाल इसलिए रखता है ताकि वो दूसरों से मुख्तलिफ नजर आए, और सारे लोगों ने शॉर्ट हेयर रखे होते हैं तो वो लॉन्ग रखता है। When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. जब हर कोई जो है ना लेसन में बात कर रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल टीचर से क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, तो rebel बिल्कुल चुप रहता है। In these lines, the poet says that when everybody talks during the lesson, the rebel stays quiet and shows that he is sincere and well-mannered. लेकिन जब टीचर जो है वो टीच कर रहा होता है, सारे चुप रहते हैं, केयरफुली सुनते हैं, तो रेबल जो है वो क्या करता है, वो बोलता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. अब यहाँ भी रेबल जो है बाकी खुद को डिफरेंट करने के लिए क्या करता है, जब सारे लोग टीचर को केयरफुली सुन रहे होते हैं, देन nobody is talking in the class, कोई भी क्लास में बात नहीं कर रहा, the rebel starts creating disturbance to gain attention of everyone, तो वो हर किसी की अटेंशन तवज्जो हासिल करने के लिए बोलता है। When everybody wears a uniform, जब हर किसी ने यूनिफॉर्म पहना होता है, the rebel dresses in fantastic clothes, तो रेबल जो है वो डिफरेंट फैंटास्टिक क्लॉथ्स में आता है, एक निराले ही ड्रेसेस में। तो डेट व्हेन एवरीबॉडी इज़ वेल ड्रेस्ड इन देयर यूनिफॉर्म, द रेबल ड्रेसेस इन सुपर फैंसी ड्रेस, तो रेबल जो है वो फैंसी ड्रेस पहनता है ताकि वो दूसरों से मुख्तलिफ नजर आए। When everybody is praising the sun, जब हर कोई धूप की सन की तारीफ करता है, the rebel remarks on the need for rain, रेबल कहते हैं कि बारिश हो जानी चाहिए ना, इवन के बारिश की ज़रूरत नहीं होती। In these lines, the poet tells us that when everybody is praising the sun, the rebel will start saying that now rain is needed, कि बारिश की ज़रूरत है, बारिश हो जानी चाहिए, just because he is not following the socially accepted rules, he wants to be different from others. When everybody goes to the meeting, जब हर कोई काम पे जाता है, मीटिंग के लिए जाता है, the rebel stays at home and reads a book, तो बागी जो है वो घर में रहता है और किताब रीड करता है। In these lines, the poet says that when everybody is going for a meeting, the rebel likes to stay at home and read a book, तो वो घर में रहना पसंद करता है और किताब रीड करता है, क्योंकि वो काम ही नहीं करना चाहता जो सारे लोग कर रहे हैं, वो सबसे डिफरेंट नजर आना चाहता है। When everybody says yes please, जब हर कोई कहता है कि जी ज़रूर, the rebel says no thank you, नहीं, तो बागी कहते हैं नहीं शुक्रिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, पोइट सेज दैट व्हेन एवरीबॉडी इज आस्किंग फॉर समथिंग बस सेइंग यस प्लीज, कोई भी चीज़ जो है वो लेता है और सारे उसका शुक्रिया अदा करते हैं, तो रेबल कहते हैं कि नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ही रिजेक्ट्स द ऑफर, वो इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। बिकॉज इट इज़ वेरी गुड डैट वी हैव रेबल्स, और राइटर यहाँ पे कह रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी सोसाइटी में बागियों को होना चाहिए। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी आवर्स आर टू बी वन ना, लेकिन खुद जो है वो कोई भी रेबल बनना पसंद नहीं करेगा। The poet concludes that it is very good that we have rebels in our society, but it is just not good to become a rebel. तो हम ये बहुत अच्छी बात है कि सोसाइटी में रेबल्स हैं, वो इनकलाब लेके आते हैं, सोसाइटी में चेंज लेके आते हैं, लेकिन हम में से कोई भी रेबल बनना पसंद नहीं करता। So all of the text has been discussed here.
And actually, why the rebel is doing all these things? Because he is not ready to do things which all people do. वो काम करना ही नहीं चाहता जो कि सारे लोग कर रहे हैं. When everybody talks, he keeps quiet. When everybody is listening, then he started speaking. So this is the point, because he just want to be different from others. So he couldn't follow the social. Okay, students, now we will discuss about the poem. What is the style of the poem? Actually, this poem is written in informal, in casual way, not formal way. And the form of the poem is that there are 15 couplets. Each couplet is opposite in meaning. तो इसमें 15 couplets है और हर couplet जो है वो different है अपने meaning में. अब couplet किससे कहते हैं? Couplet means a unit of two lines. Okay, टू लाइन्स का जो यूनिट है उसको हम कहते हैं. तो इसमें क्या है कि फर्स्ट टू लाइन्स में कोई और बात हो रही है तो दूसरी उससे नेक्स्ट जो है वो उससे डिफरेंट बात हो रही है, उससे डिफरेंट अपोजिट, उसके मीनिंग से बिल्कुल अपोजिट है. लाइक हम पहले लाइन रीड करते हैं कि जब सारे लोग शॉर्ट हेयर रखते हैं तो रैपल जो है वो क्या करता है, वो लॉन्ग हेयर रख लेता है. उससे नेक्स्ट जो लाइन आती है उसमें है कि जब सारे लोग जो हैं वो लॉन्ग हेयर रखते हैं तो रैपल जो है वो क्या करता है, वो शॉर्ट हेयर रख लेता है. तो उससे अपोजिट मीनिंग में है. टोन क्या है अब पोएम की? एक्चुअली इट्स द टोन ऑफ द पोएम इज़ ह्यूमरस एंड नॉट क्रिटिकल. ठीक है, तो इसमें कोई सच है कोई तल्खी या कोई तंज नहीं, तनकीद नहीं की जा रही, बल्कि बहुत ह्यूमरस वे में, फ़नी वे में, हल्के बल्कि अंदाज में जो है बताया जा रहा है. तो यहाँ पे जस्ट एक सोसाइटी में जो है, सोसाइटी का एस्पेक्ट जो है वो बताया जा रहा है. ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन. Okay, now you have to think about these questions. Can a rebel be good? क्या कोई rebel जो है वो अच्छा हो सकता है? Okay, I'll give you the reply by myself, but you also have to give the answer of this question. तो आपने भी इस question का आंसर देना है. Yes, a rebel can be good if he takes action for good reason. अगर वो किसी अच्छी reason के लिए action लेता है, उसके against जाता है, तो then रेबल होना बेहतर है. कैन दिस पोइम बी अबाउट अ टीनेजर? क्या ये पोइम टीनेजर के बारे में हो सकती? ऑब्वियसली ये टीनेजर के बारे में ही है, कोई पॉलिटिकल रेबल के बारे में नहीं है. हाउ कैन रिबिलियंस बी पॉजिटिव? अब रिबिलियंस जो हैं वो पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं? वही बात जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वो अगेंस्ट होते हैं सोसाइटी के उन रूल्स के जो कि सोसाइटी में नहीं होने चाहिए और अपने लिए भी काम करते हैं, दूसरों के लिए भी, मीन्स टू से द रीज़न मस्ट बी गुड, द एम शुड बी सुब्लाइम. तो एम जो है ना रेबल होने का वो सुब्लाइम होना चाहिए. ओके, हाउ कैन बीइंग अ रेबल अफेक्ट यू? अगर आप एक बागी होते हो ये कैसे आपको इफेक्ट कर सकता है ना? रेबल होना जो है वो इफेक्ट करता है, बिकॉज यू बिकम मेंटली, यू बिकम अ पर्सन हु इज़ मेंटली स्ट्रॉन्ग. मेंटली स्ट्रॉन्ग होना कैसे? मेंटली स्ट्रेंथ आपकी होती है जब सारे लोग एक डिफरेंट काम कर रहे हैं तो उसके लिए करेज चाहिए होता है, इंसान को हौसला चाहिए होता है कि वो उससे डिफरेंट कर सके. एंड यू हैव द एबिलिटी टू स्पीक अप. You can speak for your own right and for others as well. So you cannot be a puppet in the hands of others, and you just want to you are not agree to follow the rules which are made by the society, but you don't follow them. And you prove this thing that you cannot easily fooled, cannot be easily fooled by others. के आपको जो है कोई भी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि बागी जो है वो हर बात के बारे में क्वेश्चन करता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है. अगर जो है एक टीचर कहता है कि यू मस्ट सिट डाउन इन द क्लास, तो वो बागी के माइंड में आता है कि क्यों भाई, कैंट वी स्टैंड, कि हम लोग जो है लेक्चर ही लेना है, क्या हम खड़े होकर नहीं ले सकते? तो अब बागी होना जो है ना, ये रेबल जो है वो किसी भी अथॉरिटेटिव फिगर के अगेंस्ट जो है वो जाता है. अब अथॉरिटेटिव फिगर अगर हम वैसे अपनी आम रूटीन में देखें तो वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, प्रिंसिपल भी हो सकता है. तो वो जो भी रूल्स बनाते हैं रेबल जो है वो उनको फॉलो नहीं करता. ओके, नाउ वी
can see the important questions of this poem. Does the poet satirize the rebels on at the behavior of so called normal people? क्या राइटर जो है वो इस पोएम में तंज कर रहा है रेबल्स पे, और या फिर जो सो कॉल्ड बिल्कुल ही नॉर्मल लोग होते हैं उनके रवैये पे? जी हाँ, ऐसे ही है। ये एक स्टाइल ही है जिसमें जो है राइटर बहुत फ़नी अंदाज में एक स्टाइल कर रहा है, तंज कर रहा है रैबल्स पे भी, और जो कि सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल हैं, प्राय नाम जो है नाम नेहाद नॉर्मल लोग हैं, कि एक ही वे को फॉलो करें, इवन कि चेंज की ज़रूरत है, बिकॉज चेंज इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। Second question, The Rebel is a humorous poem. The Rebel is a humorous poem motivated by serious ideas. क्या ये एक humorous poem है, लेकिन इसमें जो है serious ideas को discuss किया गया? Yes, ये एक humorous poem है, मज़ाहिया अंदाज में, हल्के फुल्के अंदाज में serious ideas को discuss किया गया है कि rebel होना जो है वो बुरी बात नहीं है, लेकिन rebel जो है वो किसी अच्छी reason के लिए होना चाहिए, aim जो है वो अच्छा होना चाहिए, उसका मकसद जो है वो अच्छा होना चाहिए। Either the poem is full of humor and style or not. Yes, it is full of humor and style. Okay, next girls, you have to add some quotations of from your text. तो आपने textual lines add करनी है, बहुत easy lines हैं, और critical remarks आपने add करने हैं, and you have to give the brief introduction of the writer in while giving the answer of the question, and that will be the reason ऑफ गुड प्रेजेंटेशन ऑफ योर पेपर। तो आपने अपने पेपर की अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए जो है इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आंसर देना है। ओके, नाउ यू कैन सी द पिक ऑफ द राइटर हियर, DJ in right. Okay girls, now you have to prepare this poem, and if you have any question anywhere, then you can ask from me, I'll explain it. Hope so all the points will be clear. Thank you girls, and stay blessed.